Good morning. Welcome to the class of civics of class 10th. This is the beginning of chapter 3. This is part 1 video. You can open page number 36. The title of the chapter is Prime Minister and the Council of Ministers. In this very video, we will be discussing about the appointment of the Prime Minister, his term of office, membership, and powers and functions of the Prime Minister. So let's start the topic. Here it says, since the framers of our constitution adopted a parliamentary form of government. There are two types of government, presidential form of government and parliamentary form of government. So Indian democratic system adopted a parliamentary form of government in which parliament is supreme authority. The real executive power is vested in Prime Minister and the Council of Ministers. Means the real executive is Prime Minister and the Council of Ministers. मतलब जो काम के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जबकि नाम का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है. दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉल्ड द रियल एग्जीक्यूटिव. दिस वी शुड कीप इन माइंड. Article 74 of the Indian Constitution states that there shall be a council of ministers with the Prime Minister as its heads to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की वकालत करता है कि इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जिसका ये कर्तव्य होगा कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा ताकि प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके. राइट. Thus it is clear that President is bound to act according to the wishes of Council Minister headed by the Prime Minister. President अपने wish के according काम नहीं कर सकता. President cannot act according to his wish, according to his will. He has to work according to the advice of Council of Minister headed by the Prime Minister. President जब भी कार्य करेगा तो वो Prime Minister के एडवाइस पे ही काम करेगा, और ये Prime Minister किसके सहमति से एडवाइस बनाएगा? ये Council of Minister के साथ मीटिंग करके जो एडवाइस बनाएगा उस एडवाइस को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगा. एंड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट विल परफॉर्म हिज फंक्शन. राइट. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? According to Article 75 of the Constitution, the Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be also appointed by the President on the advice of Prime Minister. Article 75 ये कहता है कि Constitution इस बात को कहा गया है कि Prime Minister को President अपॉइंट करेगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट करेगा. मतलब प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट करेगा. सो अगेन इट सेज, in reality the president has no power in the selection of prime minister and other ministers. The prime minister and the council command the majority in the lok sabha. reality में प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनने का ये पावर है ही नहीं, बिकॉज ही इज बाउंड टू सेलेक्ट दैट वेरी पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा. लोकसभा में जो ये मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पद के लिए आमंत्रित करता है. प्राइम मिनिस्टर पद के लिए बहुमत साबित करने के लिए सदन में आमंत्रित करता है. तो ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा. Again, it says that the Constitution gives the President a discretion to select the Prime Minister when no single political party secures the absolute majority in Lok Sabha. In such circumstances, he must appoint a person as the Prime Minister who commands the majority in the House with the support of similar political parties. जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी हाउस में नहीं होती, हाउस कहने का मतलब लोकसभा, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होती, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का और भी सिमिलर लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस करने के बाद मेजोरिटी सिद्ध होने की संभावना होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे बहुमत साबित करने के लिए इनवाइट करता है. दिस यू शुड कीप इन माइंड. सो In 2004, the Lok Sabha election, no single political party secured the majority in the House. The President then invited Dr. Manmohan Singh to form the government because the left party and other smaller parties supported the Congress
and its candidate Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister. 2004 में ऐसा ही घटना हुआ था जब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, जिसमें मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट ने मेजोरिटी कैंडिडेट के रूप में अपने डिस्क्रिप्शन पे कॉल किया था टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द हाउस बिकॉज लेफ्ट पार्टीज और भी पार्टीज मनमोहन सिंह को सपोर्ट कर रही थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. नाउ वी विल डिस्कस द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. जो प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है. दे रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे कमांड द मेजोरिटी इन लोकसभा. When the Lok Sabha is dissolved after a normal term of 5 years, the minister vacates their office. जब भी लोकसभा की अवधि समाप्त होती है तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो अपना पोस्ट खाली कर देते हैं. They can vacate their office earlier if the Lok Sabha loses confidence in ministry. The Lok Sabha can express the loss of confidence in the following ways. अगर 5 साल की अवधि के समाप्ति के पहले भी उनका कॉन्फिडेंस जो है लोकसभा में नहीं रह पाता, if they loses the confidence of the house, they have to leave the power and leave the ministry, right? तो लोकसभा कैन एक्सप्रेस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द फॉलोइंग वे. लोकसभा अपना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस फॉलोइंग वे में एक्सप्रेस करता है. देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लोकसभा. तो हियर इट सेज द पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कहना कि किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, बिकॉज किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पूरा मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ता है, बिकॉज दे स्विम एंड सिंक टुगेदर. ये फिलॉसफी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये फिलॉसफी है लोकसभा की कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है दे स्विम एंड सिंक टुगेदर. मतलब वो एक साथ पावर में रहती है और पावर से जाती है गवर्नमेंट, तो एक साथ पावर से जाती है. By rejecting the government bill and passing the bill supported by the opposition. अगर गवर्नमेंट बिल को सपोर्ट नहीं मिलता और अपोजिशन के बिल को सपोर्ट मिलता, देन ऑल्सो द गवर्नमेंट लूजेज इज सपोर्ट इन द लोकसभा. नेक्स्ट, बाय वोटिंग अ कट मोशन इन द एनुअल बजट. एनुअल बजट में अगर कट मोशन होता है, देन ऑल्सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. The reduction in the salaries of the minister. If there is reduction in the salaries of the ministers, then also there is no confidence motion of that very Lok Sabha, right? By passing the adjournment motion लाके भी no confidence motion को व्यक्त किया जाता है. So these are the process of showing the no confidence in the government, and by this process the government can be abolished. When the prime minister loses the confidence of the house, he resigns. अगर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस हाउस का लूज कर जाता है, हाउस मतलब लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, he has to resign. उसको त्याग पत्र देना पड़ता है. The president either dissolves the Lok Sabha or holds a fresh election or appoints a new prime minister. प्रेसिडेंट इस सिचुएशन में क्या करेगा? जब हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और गवर्नमेंट लूज हो गया, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या करेगा? लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा और नया इलेक्शन जो है उसको मतलब करवाएगा. और अगर नया इलेक्शन नहीं होगा तो किसी दूसरे कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए आमंत्रित करेगा कि वो आके सदन में यानी लोकसभा में अपना मेजोरिटी साबित करे. दीज आर द टू सिचुएशंस. द न्यू प्राइम मिनिस्टर मस्ट सिक्योर द मेजोरिटी विद इन फ्यू वीक्स व्हेन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस. नए जो प्राइम मिनिस्टर जिसको आमंत्रित किया गया है मेजोरिटी साबित करने के लिए, उसको कुछ दिनों के अंदर सदन में अपनी मेजोरिटी साबित कर देनी होती है. करेक्ट. The Prime Minister dies in office. The President may appoint caretaker Prime Minister. Normally, the senior most cabinet minister, a person who commands a majority in the House. जब अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो प्रेसिडेंट जो है सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को जो है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देता है. और जो व्यक्ति जो मेजोरिटी पार्टी की मेजोरिटी को कमांड करता है उसको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देता है. इन 1964 when प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू died, प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपॉइंटेड गुलजारीलाल नंदा एज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर. जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो उस समय प्रेसिडेंट राधाकृष्णन ने गुलजारीलाल नंदा को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था. तो ऐसा सिचुएशन देश में एक बार आ चुका है. तो
So in the next video we will be discussing the remaining portion of the topic. So I think you have understood the point of appointment of the Prime Minister. Some portion are left, like membership and power and function of the Prime Minister, that we will be discussing in the next video. Till then, take care and stay safe. Bye.